Hello everyone, myself Lina Bhangade, and I welcome you all on behalf of Synergy Study Point in this session. So, the purpose of today's session is to give a broad overview of the questions which were asked by UPSC in this year's mains examination. We will try to divide this session into two parts. First, we will discuss the pattern about Indian society questions, whether UPSC has followed the traditional pattern or is there any new change in the pattern. And after that, we will try to discuss the structures of the answers, structures of the questions which are asked by UPSC. Okay. So you must be familiar with the syllabus of Indian society. On an average, there are around 10 to 11 topics are there in syllabus for Indian society. Okay. And if we talk about the pattern of questions, number of questions asked by UPSC. So right from 2013, a common trend can be observed that 5 to 6 questions are generally asked every year. And this year also, the trend continued. About 5 questions are asked by UPSC in this year's examination. And if we talk about the topics, so ये आपको पता होगा कि मोस्टली रिकरेंट थीम्स पे क्वेश्चंस आते हैं. मोस्टली थीम्स आर रिपीटेड. We all know that questions are not repeated, but themes are repeated. Repetitively आपको एक common themes के ऊपर questions देखने को मिलेंगे. If you analyze the paper right from 2013. What are these recurrent themes? So generally जो topics है in Indian society like caste system, then regionalism, impact of globalization on Indian society, population, urbanization. These are some favorite topics for UPSC. Frequently UPSC has asked questions from this topic. But this year you will find new areas that UPSC has explored the remaining topics of syllabus. So this year you will find question on family system. Then there is question on urbanization, but it is in tier 2 cities. Generally, whenever we talk about urbanization, we generally discuss the urbanization of metropolitan cities because it's a prominent trend for India. But this year the question is based on the tier 2 city. So ये भी एक नई थीम है. Again, एक न्यू मिडिल क्लास, एक नया थीम देखने को मिल रहा है. सेक्स एक नया थीम है. सो सेक्स इज अ न्यू टॉपिक कि जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है. And apart from this sect question, that is the comparison of sect with caste, region, and religion. Apart from this question, all the questions were very much easy to attempt. Just the sect question was little bit tricky to attempt. Okay. So if we talk about the difficulty level of questions, so 4 questions are easy to moderate, and 1 question is little bit difficult to tackle. Okay. So now we will try to decipher the questions. Okay. The first question asked by UPSC. The first question asked by UPSC for the topic Indian society is explore and evaluate the impact of work from home on family relationship. Okay. Work from home. So work from home has become a new normal for us now because of COVID pandemic. Because of COVID pandemic, there is drastic change in organization of work. And because of that, many organizations has now provided their employees the option of work from home. So अभी पैंडेमिक को 2 साल हो गए हैं. So obviously we have substantial time to analyze कि what is the impact of work from home on the family relationship or the family system of India. So here the question is not based on a family system. This question is on family relationship. So they are asking the impact of work from home on family relationship, not on family system. Okay. So when we say family relationship means
हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप, जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं फैमिली के, सो द रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट मेंबर्स एंड एल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली. ठीक है. So what we can write in introduction? In introduction, we can start with the idea of work from home. So that is because of that how because of COVID pandemic, work from home has become a new normal. Work from home option has proved to be a win-win situation for both employees as well as employer. But it has certain positive as well as negative impact on family relationship. ऐसे हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. Now, in main body of the answer, how you can, what you can write in main body of the answers. So, very straightforward question कि आप एक positive impact analyze करोगे. After that, you will write negative impact. ठीक है. So, in positive impact, which points we can mention? The first one is increment in the time spent by parents with children. कि पहले क्या होता था कि इफ बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, सो चिल्ड्रन को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे बिकॉज ऑफ द हेक्टिक वर्क शेड्यूल. But because of work from home option, now parents have substantial time which they can spend with their children. And because of that, it has also impacted their development. ठीक है, ये लिख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर हम लोग वीमेन का देखेंगे तो ऑब्वियसली वीमेन आर overburdened by double responsibilities. Sorry, like the household responsibilities of domestic chores, then childcare responsibilities, and if they are working women, then their workplace responsibilities. So एक उस पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है वर्क फ्रॉम होम का कि फॉर वीमेन इट हैज नाउ बिकम वेरी मच इजी टू मैनेज बोथ द थिंग्स. ठीक है, वी कैनॉट डिनाई दिस कि वीमेन के ऊपर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन नहीं है. ठीक है. सो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन से क्या हुआ है कि दे कैन नाउ मैनेज बोथ. थर्ड, on elderly population, if we analyze in case of elderly population, so elderly population generally experience problems like loneliness, isolation, उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है. So because of work from home क्या होगा कि now their children are spending more time at home. So now they can easily tackle these issues with the help of work from home options. Even आपने देखा होगा कि during the time of pandemic, most of the people actually return to their hometown. So उससे क्या होगा कि उन एल्डरली केयर का जो इश्यू था वो कुछ हद तक उससे एड्रेस हुआ है बिकॉज नाउ चिल्ड्रंस आर नाउ लिविंग विद देयर पेरेंट्स, along with that they are also pursuing their career. ठीक है. Again, many surveys highlight that work from home has helped in sensitization of men about the dual burden carried by women. पहले क्या होता था कि मोस्टली जो मेल मेंबर्स होते थे फैमिली के वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर के बाहर रहते थे बिकॉज ऑफ देयर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बिकॉज ऑफ देयर जॉब. बट अभी क्या हो रहा है कि उनका जो टाइम है विच दे स्पेंड इन फैमिली स्पेसेस वो बढ़ गया है. उससे क्या होगा कि there is now more sensitization about the burden carried by women, and many men has actually started helping their partner in domestic chores as well as in child care. So ये भी एक नया ट्रेंड है, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग बोल सकते हैं इसको. अगेन जब वर्क प्लेसेस एक अलग जगह पे होते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो देयर बाय कम्यूटेशन. सो अभी क्या होगा बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम कम्यूटेशन टाइम कम हो जाएगा. एक कम्यूटेशन का जो टाइम रहता था ऑन एन एवरेज 1 to 2 hours, तो वो भी खत्म हो जाएगा. एंड दैट टाइम कैन बी क्वालिटेटिवली स्पेंड विथ फैमिली मेंबर्स with more energy, with more energy and enthusiasm, because उससे एक उनको टाइम ज्यादा फैमिली के साथ मिलेगा. ठीक है.
What would be negative impact? Negative impact of work from home on family relationship. इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ब्लड वर्क लाइफ बैलेंस, कि एक जो पहले एक जो वर्क लाइफ बैलेंस का कंसेप्ट था कि इन ऑफिस स्पेसेस यू परफॉर्म योर ऑफिशियल ड्यूटीज एंड एट होम यू जनरली स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स, यू गिव द टाइम फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल हैप्पीनेस. ठीक है, बट अभी क्या हो गया है कि बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम ये लाइन ब्लर्ड हो चुकी है. आपको कभी भी एम्प्लॉयर्स कैन फोर्स टू वर्क एट एनी टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑफिस टाइमिंग. ठीक है, सो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है. अगेन कि फैमिली जो अर्निंग मेंबर्स है विद इन फैमिली, उनका जो टाइम है विच दे स्पेंड इन फैमिली स्पेसेस वो बढ़ गया है, बट इट इज नॉट क्वालिटेटिव टाइम. इट इज जस्ट देयर फिजिकल प्रेजेंस, मीन्स their physical presence has increased but not their qualitative time, because more than 8 to 9 hours they are actually working for a firm or any company. ठीक है, सो जो टाइम हमको मिल रहा है विद इन फैमिली, इट इज नॉट अ क्वालिटेटिव टाइम, इट इज जस्ट अ मियर फिजिकल प्रेजेंस. सो ये भी हम लोग लिख सकते हैं. एंड अगेन, if all the earning members of family are working from home, so obviously डोमेस्टिक एक्टिविटीज का बर्डन जो है, डोमेस्टिक चोर्स का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा. एंड ट्रेडिशनली विमेन वेर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक चोर, सो उनके ऊपर का जो बर्डन है फॉर अनपेड हाउस होल्ड एक्टिविटीज वो भी बढ़ रहा है. ठीक है, सो दीज आर सम पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ऑन फैमिली रिलेशनशिप. सो इसी को थोड़ा समराइज करके हम लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं. Second question, how is the growth of tier 2 cities related to the rise of the new middle class with an emphasis on the culture of consumption? So you have to attempt this question. Word limit is 150 words and this question is for 10 marks. So in this question is actually based on the process of urbanization. And the urbanization which now can be observed in tier 2 cities. कि एक आफ्टर 1990 पोस्ट ग्लोबलाइजेशन हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज का राइज देख रहे हैं. एक बहुत स्पीडी अर्बनाइजेशन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखने को मिल रहा है. बट इन रिसेंट ईयर्स, मींस इन लास्ट 10 years, द स्पीड ऑफ अर्बनाइजेशन इन केस ऑफ टायर 2 cities हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, सो उसी के कंटेक्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा. So what we can write, rise and growth of new middle class seems to be a metropolitan phenomenon, but in last 10 years, tier 2 cities are also experiencing rapid urbanization as a result of expansion of service sector and digital advancement. Okay, so in this way you can start your answer. So for writing this question, you should have a sound understanding of different concepts like urbanization in tier 2 cities. Then they have used the idea of new middle class. So इसके बारे में भी थोड़ा एक आपको आइडिया होना चाहिए. Then on the culture of consumption, कि culture of consumption को आप new middle class से कैसे लिंक करोगे. After that, how will you link the new middle class with the urbanization in tier 2 cities. ठीक है, so ये 3 कंसेप्ट का नॉलेज आपको होना इंपॉर्टेंट है फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज दिस न्यू मिडिल क्लास. सो अगर एक पहले थोड़ा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल एड्रेस द क्वेश्चन. ये न्यू मिडिल क्लास का कंसेप्ट क्या है. सी मिडिल क्लास को यहाँ बोला है कि इट्स अ न्यू मिडिल क्लास. सो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी ट्रेडिशनल और ओल्ड मिडिल क्लास. So because of the British rule in India
and different developmental activities introduced by British government in India. British introduced modern education, then bureaucratic jobs came at that time, different professions become a part of public life. So because of that एक मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी में इमर्ज हुआ, ठीक है. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने उस टाइम पे प्रमोट किया. हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एस्टेब्लिश हुए, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने. सो बिकॉज ऑफ दैट एक प्रॉस्परस मिडिल क्लास इंडिया में इमर्ज हुआ, ठीक है. सो दिस वाज द ट्रेडिशनल मिडिल क्लास. बट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वी आर टॉकिंग नाउ द पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा, कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन there was drastic transformation of Indian economy on the basis of the ideas of liberalization, privatization and globalization. So because of globalization क्या हुआ इंडिया में? इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ बहुत ज्यादा. आफ्टर दैट बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, उससे एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई. बाद में आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है. तो बिकॉज ऑफ दिस न्यू अपॉर्चुनिटीज एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज इन इंडिया, विच हैज अ वेरी हाई इनकम लेवल, विच हैज अ वेरी हाई डिस्पोजेबल इनकम लेवल, ठीक है. सो उसी को एक न्यू मिडिल क्लास ये टर्म दी गई. And if we compare the traditional middle class with this new middle class, so there is difference in case of there is basic difference in case of income, कि उनका जो इनकम था एंड आज का जो न्यू मिडिल क्लास है इनका इनकम, इसमें बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी. इवन इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे, सो उनकी जो ट्रेडिशनल मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनकी जितनी लाइफ टाइम में कमाई थी या उनकी जो लाइफ टाइम में उनकी जो अचीवमेंट थी, एंड आज का जो मिडिल क्लास है, सो दे एक्चुअली अर्न दैट अमाउंट इन जस्ट 5 to 10 years. सो ये बेसिक डिफरेंस है. सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन इनकम इन केस ऑफ न्यू मिडिल क्लास बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. इवन इन केस ऑफ वैल्यू सिस्टम ऑल्सो यू विल फाइंड चेंजेस. जो ट्रेडिशनल मिडिल क्लास है, इट वॉज मोर सिंपलिस्टिक एंड वो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिक थे, कि दे वर नॉट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स. मीन्स कॉन्स्पिकस कंजम्पशन उस टाइम पे नहीं था, या बहुत ज्यादा कंज्यूमरिस्टिक कल्चर उस टाइम पे नहीं था. बट ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन नई अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग द कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, द वैल्यूज विच आर बेस्ड ऑन कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, वो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट कर रहा है. सो ऑब्वियसली ये जो नया मिडिल क्लास है, इट रिप्रेजेंट दैट कंज्यूमरिस्टिक कल्चर. एंड व्हेन वी से कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कंज्यूमरिस्टिक कल्चर? कंज्यूमरिस्टिक कल्चर मीन्स अ काइंड ऑफ कल्चर कि जहाँ पे लोगों का जो कंजम्पशन होता है या लोगों का जो शॉपिंग होता है, इट इज नॉट एज पर देयर नीड, बट इट इज एज पर द चेंजिंग फैशन. कि फैशन बदली तो वो लोग नए प्रोडक्ट्स ले लेंगे, कि कंटिन्यूअसली एक स्टेटस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए दे कीप बाइंग द थिंग्स, कि लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल आ गया, लेटेस्ट मॉडल की कार आ गई. सो सारे जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है वो उनके पास होने चाहिए. सो दिस इज कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, कि कंजम्पशन नॉट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स बट अकॉर्डिंग टू द फैशन, ठीक है. सो हाउ वी कैन लिंक विथ how we can link the urbanization in tier 2 cities with the growth of consumeristic new middle class. So वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. In first part we can write the reasons for rapid expansion of tier 2 cities. कि tier 2 cities में urbanization क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए हम लोग कुछ फैक्टर्स लिख सकते हैं. इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोस्टली ऐसे कौन सी टायर 2 सिटीज है जिनका एक्सपेंशन हो रहा है. So if you carefully observe, so those cities which are in close proximity of metropolitan cities, उनका expansion हो रहा है. For example, the cities around Delhi region, Noida, Gurgaon, Ghaziabad, Meerut, and in case of Mumbai, the surrounding cities of Mumbai like Thane, Navi Mumbai, Kalyan, उनका expansion हो रहा है. So ये एक prominent trend है कि टायर 2 cities का expansion हो रहा है, but
those tier 2 cities which are in close proximity of metropolitan cities. And why there is expansion of tier 2 cities which are in close proximity of metropolitan cities? To because एक metropolitan cities are now facing saturation. उनका एक पीक आ गया है, उनकी अभी एक सैचुरेशन की लेवल आ गई है. if we talk in if we talk about cities like Mumbai, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक सैचुरेशन आ गया है कि लैंड प्राइसेस बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक के बहुत इशू है, पोल्यूशन का इशू है, एक क्रम्बलिंग सिविक फैसिलिटीज, मतलब द क्वालिटीज ऑफ सिविक फैसिलिटीज इज नॉट अप टू द मार्क इन दो सिटीज. हाउसिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है उधर. सो बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो टायर 2 सिटीज है विच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उनका एक्सपेंशन हो रहा है. सो अलॉन्ग विद दैट कि जो टायर 2 सिटीज है they provide some benefits like land prices are very much less compared to metropolitan cities. अगेन वहां पे एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट many tier 2 cities are actually emerging the new hubs of entrepreneurship, startups, sunrise industries like automobile industries, pharmaceutical industries. ठीक है, इसमें हम लोग अहमदाबाद, लखनऊ, कोची, नागपुर, पुणे जैसे सिटीज का एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रोल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है लाइक स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, so these schemes generally focus the improvement of physical infrastructure in cities, improvement of civic facilities in cities. so उससे भी क्या हो रहा है कि जो टायर 2 सिटीज है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, एंड उससे क्या होगा कि इन सिटीज का एक्सपेंशन होगा. एंड हाउ, यस, एज दिस सिटीज आर ब्रिंगिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, सो उससे क्या होगा कि दिस अपॉर्चुनिटीज वुड बी कैटर्ड बाय द ग्रोइंग ह्यूमन रिसोर्स इन देयर सिटीज. सो उससे क्या होगा कि एक न्यू मिडिल क्लास अभी टायर 2 सिटीज में इमर्ज हो रहा है. इसमें और एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक most of the people actually shifted to their hometowns, and many people are actually preferring to work from their hometown. So उससे क्या हो रहा है कि एक जो इससे मदद हुई कि जो मिडिल क्लास है इन टायर 2 सिटीज, उसका एक्सपेंशन होने में उससे मदद मिली. ठीक है, सो दीज आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज. एंड उससे क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज एक न्यू मिडिल क्लास अभी टायर 2 सिटीज में इमर्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज लाइक स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, देन सनराइज इंडस्ट्रीज, आईटी हब्स आ रहे हैं इन सिटीज एट द नेबरहुड ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज. ठीक है, सो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि दिस न्यू मिडिल क्लास विच on one hand represent globalization, on other hand it also represent that consumeristic culture. so obviously एक तो इनकम लेवल बढ़ेगा उनका, न्यू मिडिल क्लास मीन्स उनका इनकम लेवल एक्सपोनेंशियली बढ़ा है. सो दिस मिलेनियल क्लास जिनका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. सो यू कैन ऑब्जर्व इन टायर 2 सिटीज कि लोगों का जो कंजम्पशन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, वो बहुत ज्यादा बढ़ा है. इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक टीवी, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, एसी, कार, टू व्हीलर्स, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन्स, ये बहुत ज्यादा बढ़ा है इन टायर 2 सिटीज. इट शोज द कंज्यूमरिस्टिक कल्चर विच इज पेनिट्रेटिंग इन टायर 2 सिटीज. ठीक है, सो उसके और एग्जाम्पल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं. In tier 2 cities, now you can find the accessibility of shopping platforms like Amazon, Flipkart. एक बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स, बार्स बढ़ गए हैं इन टायर 2 सिटीज. फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स आ गए लाइक मैकडी, KFC, सुपर शॉप्स, मॉल्स, ब्रांड शोरूम्स, मल्टीप्लेक्स,
एंटरटेनमेंट पार्क्स, ये सारी चीजें जो पहले एक मेट्रोपॉलिटन कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी, नाउ ऑल दिस थिंग्स यू कैन फाइंड आउट इन टायर 2 सिटीज ऑल्सो. सो ऐसे ही आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है. एंड अगेन व्हाट यू कैन राइट इन कंक्लूजन, with newly emerged middle class, tier 2 cities would be the future growth engine of India, but it should not be at the cost of reckless consumeristic culture, which can prove to be disastrous for environment. कि in near future, not the metropolitan cities, but the tier 2 cities would be the growth engine for economy, because most of the new industrial activities would now be concentrated in tier 2 cities. But because of consumeristic culture is always disastrous for environment. ठीक है. सो एक ऐसा मॉडल हमको अपनाना चाहिए कि विच कैन बैलेंस बोथ. एक on one end it can balance development, on the other end it should balance environment also.